روحلا صاحب کم سے کم اس پارٹی میں ایک آدمی واحد جو آدمی ہے وہ ہے سعید آغا روحلا صاحب، جو اس پہ بات کر رہا ہے، ابھی تک بات کر رہا ہے اس بات کے لیے، لیکن اکیلا ہے، اکیلی جان کہاں تک جائے گا، کیا کر پائے گا، اکیلا انسان کہاں تک چلا جائے گا۔ ناظرین السلام علیکم، آپ جڑ چکے ہیں پی نیوز کے ساتھ۔ اس وقت میرے دائیں طرف عبدالرشید ہارون ہے جو عوامی نیشنل کانفرنس کے صوبائی صدر ہیں یہاں جموں کشمیر میں۔ ہارون صاحب، آپ کو پی نیوز میں خیر مقدم ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو موجودہ سرکار ہے، جو انہوں نے الیکشن کے دوران، یا اس طرح کہیں گے کہ الیکشن مینیفیسٹو میں جو انہوں نے باتیں کی ہیں، جو وعدے کی ہیں پبلک کے ساتھ، کیا وہ اتر رہے ہیں اپنے وہ وعدوں پہ؟ پہلے آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں یہاں بلا کر اپنا قیمتی وقت دے دیا۔ آپ نے جیسے کہا کہ موجودہ حکومت جو جن کو لوگوں نے ووٹ دیے تھے، بہت اچھی میجارٹی سے ان کو گورنمنٹ میں لایا تھا، کیونکہ گورنمنٹ کے پاس اور لوگوں کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، تو انہوں نے ایک ہی پارٹی کو ون سائیڈڈ ووٹ دے دیا۔ وہ بہت اچھی بات ہے، لیکن بہت امیدیں اس سے وابستہ تھی کہ جو انہوں نے مینیفیسٹو میں دیا تھا، جو چیزیں کرنے کے لیے انہوں نے دی تھی، اس میں سب جگہ وہ فیلئر، ان کا تو بالکل ٹوٹلی فیلئر ہوا، ہر جگہ، ہر چیز پہ۔ جو بھی چیز یہاں پر کرنی تھی، جو انہوں نے وعدے کیے تھے، کوئی بھی ایک چیز آج کی ڈیٹ تک 100 ڈیز کا ٹائم بھی ان کا ہو گیا ہے، 100 دن کا ٹائم بھی ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آج بالکل ویسے حالات ہے جیسے 2024 الیکشن سے پہلے تھے، اس میں کوئی فرق نہیں آیا۔ چاہے الیکٹرسٹی کو لے کر لے لیجئے، راشن کا مسئلہ لے لیجئے، گیس کا مسئلہ لے لیجئے، یہ ایون دو اور بھی کتنے مسائل ہیں، جیسے کہ ڈیلیویجرز کو انہوں نے کہا تھا کہ ہم پرماننٹ کریں گے اور امپلائمنٹ کو جنریٹ کریں گے، کسی ایک چیز میں آج تک وہ، ایون دو اگر آپ آج کی ڈیٹ میں دیکھیں، پرانے سے مجھے لگتا ہے آج زیادہ حالات بدتر ہو رہے ہیں۔ آج اس لیے حالات بدتر ہو رہے ہیں کہ سڑکوں پہ دیکھیے اسٹریٹ وینڈرز کیسے اپنا جو فوڈ آئٹمز بیچتے ہیں، بالکل اوپن کھلے عام میں، گردے کا پرواہ نہیں، کوئی چیکنگ نہیں، کوئی مارکیٹ چیکنگ نہیں، ایسی چیزیں، مطلب بد سے بدتر اب الیکشن سے پہلے جو حالات ہیں اس سے بدتر حالات آج کل ہو رہے ہیں۔ یا ہارون صاحب، اگر دیکھیں گے کہ کشمیر میں یہ جو آپ نے فوڈ کی بات کی ہے کہ کوئی چیکنگ نہیں ہے، میں آپ کے بات سے ایگری ہوں، کیونکہ جب ہم پہلے دیکھتے تھے کہ جو ہمارے یہاں پہ جو میٹ بیچتے تھے، ایک یہاں پہ ایک ذبح خانہ ہوا کرتا تھا، پھر میونسپلٹی جو ہمارے یہ فوڈ کے جو ذمہ دار لوگ تھے، جو محکمہ تھا جو اس کو چیک کرتے تھے، تو وہ ایک سٹیپ ڈالتے تھے، وہیں ذبح ہوتا تھا۔ پھر ہم دیکھتے تھے کہ جو بھیڑ بکری ادھر دکانوں پہ دیکھتے تھے، ہم اس کو، مجھے بچپن کا یاد ہے کہ وہ ایک سٹیپ ہوا کرتی تھی میونسپلٹی کی، لیکن آج وہ نہیں ہے۔ کیا آپ کو بھی یہ خدشہ لگتا ہے کہ معلوم نہیں کہ ہمارے جو میٹ بیچنے والے ہیں، یہ قصاب جو ہے، یہ کیا بیچ رہے ہیں، اس کو بیچ رہے ہیں؟ بالکل، میں یہی بات آپ کو اشاروں میں کہہ چکا ہوں کہ ابھی پہلے جب یہاں پہلی گورنمنٹیں جب بھی ہوا کرتی تھی شیر کشمیر کے ٹائم پہ، یا اس کے بعد بھی بہت ساری گورنمنٹیں، ہمارے غلام محمد شاہ صاحب کی گورنمنٹ تھی، اس ٹائم سلاٹر ہاؤسز ہوتے تھے، اور سلاٹر ہاؤسز میں ہمارے ڈاکٹرز ہوتے تھے، اور اسپیشلی ایک ٹیم کو دیا گیا ہے میونسپل کارپوریشن کے حوالے، جس میں ہیلتھ افسر صاحب بیٹھتا ہے، اور ہیلتھ افسر صاحب کو یہی چیزیں چیک کرنی ہوتی ہے کہ وہاں ڈاکٹرز جاتے تھے، دیکھتے تھے کہیں بیڑو بیمار تو نہیں ہے، گریڈ 1 مار رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں، یا آج پتہ نہیں ہم کیا کھا رہے ہیں۔ یعنی آپ کا یہ کہنا ہے کہ پہلے یہاں پہ ایک سسٹم ہوا یہ کرتا تھا کہ جب کسی بھیڑ یا بکری کو ذبح کرتے تھے سلاٹر ہاؤس میں، تو پہلے ڈاکٹر اور جو ان کا ہیلتھ آفیسر ہوا کرتا تھا، پہلے وہ چیک کرتا کہ یہ جو جانور ہے یہ صحت مند ہے، ٹھیک ہے، کوئی بیماری تو نہیں ہے، اس کے بعد اس کو ذبح کرنے کی اجازت ہوتی تھی۔ آج وہ نہیں۔ بالکل ایسا ہی ہوتا تھا کہ گریڈ 1 میٹ کا جو ابھی ہمارا جو یہ ریٹ کا تو یہاں ابھی کوئی کنسپٹ نہیں ہے۔ آپ کسی جگہ جائیے 700 روپے کے جی ملے گا، کسی جگہ جائیے 750 کے جی ملے گا، اور اپنی منمانی ان کی ہے، اوجڑی بھی ساتھ دیتے ہیں، اور میٹ کا یہ کوئی پتہ نہیں ہے میٹ کس اسٹینڈرڈ کا بک رہا ہے یہاں پہ، اور بیمار میٹ کھا رہے ہیں ہم لوگ، کس جانور کا کھا رہے ہیں، اس بات کے کوئی ٹس سے مس گورنمنٹ نہیں ہو رہی ہے۔ جو منمانی قصابوں کے دلوں میں آتی ہے وہ کر رہے ہیں، وہ آپ ان سے ریٹس کے بارے میں بول ہی نہیں سکتے ہیں، آپ ان کے کوالٹیز کے بارے میں بول ہی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ کوئی دیکھنے والا تو ہے نہیں، لک آفٹر کوئی کرتا نہیں ہے۔ ایسے اسٹریٹ وینڈرز جیسے کہ ہمارے فوڈ آئٹمز سڑکوں پہ بیچتے ہیں، اتنے پریزرویٹیوز، اتنے ٹیسٹنگ پاؤڈرز وغیرہ جو بھی اس میں کیمیکلز پڑتے ہیں، وہ دے کر بیچ رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں آپ نے حضرت بل میں دیکھا کہ تیل میں چوہے دوڑ رہے تھے، اور کس چیز کا تیل استعمال کر رہے ہیں، کوئی چیکنگ نہیں۔ میں پھر میونسپل کارپوریشن کے کمشنر صاحب سے گزارش کرتا ہوں، آپ صاحب، آپ کے اندر ایک ہیلتھ آفیسر بیٹھتا ہے، ایک ڈپارٹمنٹ ہے ہیلتھ کا، ان کو ایکٹیویٹ کیجیے۔ آپ دیکھیے یہ پریزرویٹیوز کیا ان چیزوں کے ساتھ، فوڈ آئٹمز کے ساتھ، جو ہمارا جیسے کہ آج کل اسٹریٹ وینڈرز بہت جگہ یہ فوڈس وغیرہ بیچتے ہیں، یہ کون سا تیل استعمال کر رہے ہیں، کون سا کلر بیچ میں ڈال رہے ہیں، وہ مطلب صحت کے لیے صحیح ہے یا غلط ہے، وہ چیز کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس وقت غریب کو غریب سے غریب تک کیا جا رہا ہے۔ جو ہمارے ڈیلیویجرز ہیں، منیمم ویجز کیا ہونے چاہیے،
देखिए ये यहाँ की बात नहीं है, मैं टोटल वर्ल्ड की बात करता हूँ। हमारे उस रेशो से मिनिमम डेलीवेजर्स को 24,000 से 26,000 सैलरी होनी चाहिए, और हमारे यहाँ डेलीवेजर्स कुछ 8,000 पे भी काम कर रहे हैं, कुछ एसपीओ 12,000 पे भी बात कर रहे हैं, 13,000 पे भी सैलरी ले रहे हैं, और कुछ लोग यहाँ हमारे डिपार्टमेंट्स में जो डेलीवेजर्स है 8,000 रुपए पे काम कर रहे हैं। तो इस चीज का गवर्नमेंट को बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए, बिल्कुल इस पे काम करना चाहिए, हर एक एस्पेक्ट को नजर में रखना चाहिए, हर एक आदमी को नजर में रखना चाहिए। अब प्राइवेट सेक्टर में हमारे यहाँ इस वक्त प्राइवेट स्कूल्स है, उन पे कोई बात नहीं कर रहा है, वो बिल्कुल बच्चों से फीस ले रहे हैं, 5,000 10,000 रुपए महीने का फीस ले रहे हैं, लेकिन जो पढ़ाने वाला है, जो टीचर वहां पे है, वो 10,000 की सैलरी पे लेते हैं। वो 10,000 में क्या कर पाएगा, उस चीज को देखना होगा हमने। अगर सरकार की बात करेंगे कि जो मंत्री साहिबा हमारी सकीना यतू जी, उसने कहा कि हमारे पास रिटर्न में कोई कंप्लेंट नहीं आती है कि जो स्कूल फीस लेते हैं, जो स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों में प्रॉब्लम है, हमारे पास रिटर्न कंप्लेंट अगर कोई भेजेगा तो हम उस पर एक्शन किया। और वैसे भी हमने एक कमेटी बनाई जो इसको देख रहे हैं कि कौन स्कूल किस तरह से कर रहे हैं, ये उनका दावा है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या समवैसित एक सोसाइटी जी, या आप एक पॉलिटिशियन भी है, सिविल सोसाइटी में भी आप हैं, तो क्या हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है कि जिस तरह से सरकार ने दावा किया है कि हम इस चीज करें, अगर सरकार नहीं करते हैं, क्या हम उन पे दबाव बढ़ा सकते हैं? वैसे देखिए मैं ये कहता हूं सरकार और लोग ऐसे होने चाहिए, ये जो कहते हैं ना पार्ट एंड पार्सल होने चाहिए, लेकिन यहाँ क्या दबाव, किस पे कौन दबाव बढ़ाएगा, कौन सुनने वाला आगे है। इसलिए अब सिविल सोसाइटी को सामने आना पड़ेगा और सरकार को ये बार बार पावर करना चाहिए, वरना सरकार में भी हमारे लोग हैं, सरकार से कोई बाहर के लोग नहीं है, हमारे लोग हैं, उनको इस बात पे संगीन नोटिस लेना चाहिए और इन चीजों को करना चाहिए। देखिए मैं स्ट्रेट पे आपसे कहता हूं, जहां पर भी प्राइवेट स्कूलों को आप देखिए, वहां जो फैकल्टीज होते हैं, जो पढ़ाने वाले होते हैं, उनकी सैलरी देखिए आप क्या है और उनकी सैलरी किस तरीके से मिल रही है। अगर मैं कहता हूं उनको, अगर वो किताबों में लिखते हैं 25,000 की सैलरी है, 30,000 की सैलरी, उनको बाई चेक पेमेंट हो जानी चाहिए। ये तो जिम्मेदारी उन टीचरों की है ना जो स्टाफ वहां पे है। अगर वो सैलरी 10,000 लेते हैं, 15,000 का रिसिप्ट अपने डिपार्टमेंट ये जिस स्कूल में करते हैं इंतजामिया को देते हैं, उनको मिनिस्टर साहिबा को या उनको डिपार्टमेंट को या कहीं पे शिकायत करनी चाहिए। वो तो नहीं करते हैं ना। देखिए मजबूरी है यहाँ, जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान है वो दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं सड़कों पे सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। अब वो यही गनीमत समझते हैं, हमें 10,000 मिलते हैं, कम से कम हमारा मेंटल ठीक रहता है, हम वहां पढ़ाने के लिए जाते हैं, लेकिन जरूरतें पूरी नहीं होती है, लेकिन उनकी मजबूरी है। यहाँ लाखों लड़के, मैं यहाँ एक आपको बताना चाहता हूँ, हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन के जो रिक्रूटमेंट होनी थी आज तक नहीं हो रही है। जो भी चढ़ाते हैं रिक्रूटमेंट के लिए फिर उतार देते हैं। इसमें इन लोगों को, इन नौजवानों को गवर्नमेंट जॉब्स के लिए लाना चाहिए गवर्नमेंट को आगे। आप देखिए पीएससी के एग्जाम्स, आप देखिए ये मेरे सामने कागज एक पड़ा है, ये बहुत आपने कहा कि सकीना जी के पास कंप्लेंट नहीं गई है, ये सामने पड़ी है, ये गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एजुकेशन डिपार्टमेंट सिविल सेक्टर जम्मू जे ये पड़ी है। ये देखिए कितने लड़के इस वक्त यहाँ पर, नौजवान बेटे बच्चियां जम्मू से, कश्मीर से, कितने लोग बेकार पड़े हैं, पीजी करके हैं। देखिए माइक्रोबायोलॉजी में 10+2 लेक्चरर्स के लिए क्या निकल रहा है, कहां से इंटरव्यू निकल रहे हैं, कितने बच्चे बेकार है। कोई मतलब उनके लिए, उमर साहब जब भी हुकूमत में आए उसने अपना मैनिफेस्टो रखा कि हम इतने रिक्रूटमेंट करेंगे, चाहे 10+2 के लेक्चरर हो या कोई भी पीएसए के या SSRB के पोस्ट्स निकलेंगे आपको दे देंगे। हम नहीं कहते हैं कि बैकडोर चैनल से लगाइए, आप निकालिए। यहाँ अल्लाह का शुक्र है जम्मू कश्मीर हमारी रियासत में आज का जो बच्चा, नोटिफिकेशन निकल गई है, मुझे बताइए कहां पे काम हो रहा है उनको। ये तो बारफटिंग बेसिस पे। अभी तो हमारी गवर्नमेंट उमर साहब को 4 महीने गवर्नमेंट कर रहे हैं, 4 महीने से गवर्नमेंट कर रहे हैं, और इसी वादे पे वो आए थे 370 स्टेट फूड वगैरह, एम्प्लॉयमेंट, गैस का, बाकी चीजें, 1000 चीजें, लेकिन आज तक कहीं नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ उमर साहब अपना, जो उमर साहब को उस टाइम मिलना था, उमर साहब को सिर्फ इसलिए अपने एमएलएस को प्रोटोकॉल, अपनी तनख्वाहें, अपनी नौकरियां परमानेंट कर ली, और लोगों की आज तक उसने कोई बात या कोई जमीनी सतह पे कोई भी जो उसने बातें की, कोई भी जमीनी सतह पे इस वक्त देखने को नहीं मिल रही। 3 महीने हो गए, 3-3.5 महीने हो गए अभी सरकार को। 3.5 महीने में कैसे जांच करेंगे कि ये सरकार क्या करेगी? देखिए कोई पैरामीटर है जिससे इसको नापा जा सकता है कि ये कहां जाए? देखिए पैरामीटर एक पॉलिटिकल सिस्टम में जो होता है कि, और भी केजरीवाल सरकार दिल्ली में थी, वो भी यूटी सरकार ही है, उसने वहां 200 यूनिट्स का या 300 यूनिट्स का फ्री कर दिया। हमारे उमर साहब भी यूटी में ही है, वो भी कर सकते थे। अब उसने बोला ये बजट, ये मार्च के बाद, अप्रैल में उन्होंने बोला है। देखिए यहाँ पर आपको पता है जम्मू कश्मीर में 2024 में जब भी इलेक्शन हुआ, तो इलेक्शन के बाद ही यहाँ सर्दियों का सिलसिला शुरू हो गया। और सर्दियों में पता है, आप भी कश्मीरी है, मैं भी कश्मीरी हूँ, हमारी कितनी प्रॉब्लम होती है। अगर सरकार इस चीज में चूकती है कि अपने लोगों को
बिजली नहीं दे पाएगी, 200 यूनिट फ्री नहीं कर पाएगी, या गैस के सिलेंडर फ्री नहीं कर रही है, या 10 किलो चावल का जो 5 किलो चावल। आज मैं आपको बशीर साहब ईमानदारी से कहता हूं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो ओपन मार्केट में जाके चावल का 1 केजी 50 रुपए का ले रहे हैं, लेकिन मजबूरी है, बच्चों को तो रोटी खिलानी है ना, बच्चों को चावल खिलाने हैं, कहां से लाएगा? अब मार्केट में जाइए, वही चावल जो घिसे पिटे चावल, ब्रांडिंग होती है, और कोई रेट लिस्ट का कोई ये नहीं है, कोई निजाम नहीं है। मैं ड्यूकाम साहब से इस वक्त, या इंतजाम में मैं अब उमर साहब को बोलना छोड़ दे, उमर साहब का नाम बार बार लेता हूं, मैं गवर्नर साहब से अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं, एक रेट लिस्ट वाकई तौर पे जो जेन्युइन रेट पे लोगों को अपनी राशन पानी ला सकेंगे। वरना मतलब राजबाग में एक रेट मिलेगा आपको, बोरी कदल में दूसरा रेट मिलेगा आपको, सोबरा में तीसरा रेट मिलेगा आपको। इस चीज को कंट्रोल करने की जरूरत है। और मैं इल्तिजा करता हूं एलजी साहब से, आप ये जो राशन जो 5 केजी का यहाँ पर दिया है, एलजी साहब मेहरबानी करके, यहाँ कश्मीरी सुबह शाम दिन में 2 बार चावल खाते हैं, 5 किलो से हमारा गुजारा नहीं है, 5 किलो हमारे राशन से गुजारा नहीं है। और फारूक अब्दुल्ला साहब ने या उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा था कि हम शुगर भी दे देंगे, हम चारकोल भी दे देंगे, हम सिलेंडर भी दे देंगे, हम फायरवुड भी दे देंगे। कहाँ है वो चीजें? उमर साहब, आपका मैनिफेस्टो था, आप देखिए, बार बार आप पे मैनिफेस्टो था, ये मैं मानता ही नहीं आप इसको मैनिफेस्टो। अब उमर साहब थकते नहीं है, मोदी जी यहाँ आए, मोस्ट वेलकम मोदी जी यहाँ जाडमो टनल पे आए, उमर साहब ऐसे तारीफें कर रहे थे मोदी साहब को। अरे मोदी साहब की जब आप तारीफें कर रहे थे, कम से कम 2-4 चीजें वहां पर बोल देते, मोदी साहब हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, तारीफें तो वज़ीर आज़म को करनी चाहिए। नहीं, मैं बिल्कुल मेहमान था, हम सब लोगों को कश्मीरियत इसके लिए बड़ी मानी जाती है, प्रोटोकॉल देने के लिए। आपने देखा होगा, बर्फ में यहाँ गाड़ियां रुकी, टूरिस्ट फंसे, लोगों ने अपने घर खोल दिया, हमने मस्जिदें खोल दिए, फिर भी वो उससे तो बहुत ऊपर है, प्राइम मिनिस्टर को तो होना चाहिए। लेकिन मेरे उमर साहब को ये भी चाहिए था, अब बहुत इससे भी और 10-20% और भी तारीफें करते, लेकिन 2-4 काम अपने छोटे छोटे जो हमारे इंटरनल इश्यूज है जम्मू कश्मीर में, चाहे राशन का है, चाहे गैस का है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी का है, इस चीज को लेकर बोलना चाहिए था वहां पर उमर साहब को। दफा 370 या 35 या स्टेटहुड, चलिए ये डिबेट है आपके यूनियन कैबिनेट में या पार्लियामेंट में, आपका ये डिबेट है, उसके लिए हम बड़ा शुक्रगुजार है रोहला जी के। रोहला साहब, कम से कम इस पार्टी में एक आदमी, वाहिद जो आदमी है, वो है सईद आगा रोहला साहब, जो इस पे बात कर रहा है, अभी तक बात कर रहा है इस बात के लिए। लेकिन अकेला है, अकेली जान के आप कहां तक जाएगा, क्या कर पाएगा, अकेला इंसान कहां तक चला जाएगा। शुक्रिया हारून साहब। ये आप सुन रहे थे हारून साहब को, इनका ये कहना है कि जो उमर साहब या कि सरकार ने इलेक्शन से पहले जो आवाम से वादे किए हैं, बिजली के हवाले से, राशन के हवाले से, या जो और जरूरत जिंदगी है एक आम आदमी को, उन बड़े चीजों के लिए तो हम इन्होंने बात नहीं की है। उस हवाले से बात हुई है कि उमर अब्दुल्ला साहब ने जो वादे किए हैं, उसके सरकार ने जिस पे उन्होंने वोट लिया है आवाम से, और आवाम ने भी बढ़ चढ़कर उन वादों को हाथों हाथ लिया और भरोसा किया, वोट दिया। लेकिन अभी तक 3.5 महीने गुजर चुके हैं कि सरकार को एक भी वादा पूरा नहीं हुआ, ये हारून साहब का कहना है। और सच भी ये है कि उल्टा उसके वजह, अगर हम मार्केट की बात करेंगे कि मार्केट में किसी किस्म की चेकिंग नहीं है, खासकर फूड आइटम्स के हवाले से, जो बड़ा एसेंशियल है। नाज़रीन, मिलते हैं आगे प्रोग्राम में किसी और मुद्दे के साथ, किसी और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। हारून साहब, शुक्रिया।